شادی کے نام پر لوگوں کو رونا آ رہا, ہاتھا پاؤں میں تھرتھری چھوٹ رہی, کتوں کو تو ہارٹ آ جا رہا. ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہو, بائیکاٹ کرو ایسی شادیوں کا. گھر کے بڑے ہو تو اپنی بات, اپنے الفاظ میں وزن پیدا کرو. دوستوں اور بزرگوں, اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو اور عمل صالح کی کوشش کرتے رہو, نمازوں کی پابندی کرتے رہو, اخلاق کو, کردار کو بلند کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, اپنے ماں باپ کی دعائیں لو اور بری صحبت سے, غلط صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھو. آج معاشرے میں ہمارے برائیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں. ناچ گانا, کھیل کود ایک عام سی بات ہو گئی. ارے یہ معمولی بات ہے, چلتے رہتا بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ معمولی بات ہے, چلتے رہتا. آج جو ولیمے میں جاؤ بغیر آرکیسٹرا, بغیر ڈینسروں کے ولیمہ پورا ہی نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہیں آپ, بغیر آرکیسٹرا کے, بغیر ڈینسروں کے ولیمہ پورا ہی نہیں ہو رہا. اور بے شرمی, بے حیائی کا یہ حال ہے. دادا ادھر بیٹھے ہوئے ہے, پوترا ادھر بیٹھا ہوا ہے, باوا ادھر بیٹھے ہوئے ہے, بیٹا ادھر بیٹھا ہوا ہے. اور پھر بے حیائی کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے اسکرین لگا کر لیڈیز میں کنیکشن دیا جا رہا. تم لوگ بھی لطف لو. تو تھوڑے ایسے ہیں جینٹس باجے والوں کو لیڈیز میں بجوا کر, باجا جینٹس لیڈیز دونوں ناچ رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ترقی ہو رہی, کیسی ترقی ہو رہی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. بڑوں سے پوچھو کیا بولنا صاحب, بچوں کی خوشی ہے. کیا بول کے دامن جھاڑ لیتے, بچوں کی خوشی ہے صاحب. وہی بچہ بولتا ابا تمہارے جنازے میں باجا بجاتا ہوں. بچے کی خوشی کے نام پہ اجازت دے کے جانا, بالکل وصیت لکھ کے جانا, میرا بیٹا میرے جنازے میں باجا بجایا, آرکیسٹرا بجایا, ڈانسروں کو نچایا, ہجڑوں کو نچایا, تو یہ کام کرنے دیا اس کو. بچے کی خوشی ہے نا, اجازت دیتے اس بات کی. ہاں کیا ہو گیا تم کو, ذمہ داری سے دور بھاگ رہے ہو, بائیکاٹ کرو ایسی شادیوں کا. گھر کے بڑے ہو تو اپنی بات, اپنے الفاظ میں وزن پیدا کرو اور ایک دم ڈنکے کی چوٹ پر پتھر کی لکیر کی طرح بول دو, اگر اس میں اس طرح کی حرکت ہوئی میں اسی وقت شادی خانے سے نکل جاؤں گا. اس کے بعد دیکھو کسی کی مجال ہوتی کیا. کوئی اکسایا تو بھی بولتا جان دے رہے باپ کی راکھ ہو جا رہے ہیں. کوئی اکسایا بھی ارے کریں گے, کریں گے, جان دے رہے باپ کی راکھ ہو جا رہے ہیں, چلے جائیں گے شادی خانے میں سے. ڈر پیدا ہو جاتا, بڑوں کی تعظیم پیدا ہو جاتی. بڑے اپنا رول ادا کریں تو چھوٹے اپنا رول ادا کریں گے. تم ہی بڑھاوا دے رہے, لاؤ پٹاخے لاؤ, راکٹاں لاؤ, دکھا دو پورے محلے کو اپن لوگ کیا ہے, کیا ہے, ڈھوے ہے, ناچنے والوں کے خاندان سے ہے, کیا ہے, دکھا دو, کہتے دکھا دو. معاذ اللہ, استغفر اللہ. دکھانا ہے تو نماز پڑھ کے دکھاؤ, سبحان اللہ, قرآن پڑھ کے دکھاؤ, بے شک, سبحان حدیث رسول پڑھ کے دکھاؤ, رسول کی سیرت پر چل کے دکھاؤ, رسول کی سنت عمل کر کے دکھاؤ. دکھانے کی چیز تو یہ ہے. دکھاؤ کہتے باجا بجا کے, پٹاخے پھوڑ کے دکھاؤ. اس واسطے ایسے شادیوں پہ لعنت برس رہی. 3 مہینے کے اندر طلاق, 3 ہی مہینے کے اندر. ارے بہت تو ایسے بھی ہے 5 جمعہ بھی پورے نہیں ہو رہے, چھوٹی چھوٹی بات پر. ہاں ایسا بولے, ہاں ایسا ہوا, لا لو بچی کو گھر کو واپس, توڑا دو, چھوڑا دو, ختم کر دو, ان کا سامان ان کو دے ڈالو, اپنا سامان اپن لے لو. یہ چل رہے معاملے, ہزاروں واقعات. تو میرے بھائیوں, شادی کرو تو دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہو, اس کا ثواب ملے گا. نیت پر دار و مدار ہے, اس کا ثواب ملے گا. اچھے کام کرو, اچھے کاموں کی طرف لوگوں کو رغبت دلاؤ, کوشش کرو, محنت کرو, نیکی کے راستے پر محنت کرو, نیکی کی دعوت دو, نیکی کے طرف لوگوں کو بلاؤ. خود بھی برائی سے بچو, خود بھی برائی سے رکو, دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرو. یہی رب تعالیٰ کا حکم ہے, یہی امر بھی
मारूफ वो नहीं, अनिल मुनकर क्या जो है जाविया और तरीका कार है। लिहाजा इन कामों में हम हिस्सा लेने के बजाय बुराइयों के कामों में बढ़ावा दे रहे हैं। एक दूसरे को हम उनका साथ दे करके बुराइयों में इजाफा कर रहे हैं, मुआशरे को तबाह कर रहे हैं। याद रखो, अगर आज इस मामलात में हमने तवज्जो ना दी तो आने वाली कौमें इससे बुरे हाल को पहुंच जाएगी। अगर हमने अब तवज्जो ना दी तो आने वाली नस्लें इससे बुरा किरदार अपना लेंगी। हज़रात, ऐसे बुरे कामों को बढ़ावा ना दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या है? रसूलुल्लाह की सुन्नत है। निकाह करना क्या है? सरकार की सुन्नत है। और वो सुन्नत किसके लिए है? वो सुन्नत उसके लिए है जो बालिग है और अपनी बीवी के नानो नफका अदा करने की इस्तिताअत रखता है और बुराइयों के कामों से अपने आप को बचाता है। यानी जिना की तरफ उसके कदम नहीं बढ़ते, नजर नहीं भटकती, ख्याल नहीं भटकता, बुरी हरकतें नहीं करता। ऐसे के लिए निकाह करना सुन्नत है। ऐसे के लिए निकाह करना सुन्नत है। और जो बालिग है, नानो नफका अदा करने की इस्तिताअत रखता है और बुराइयों की तरफ भागता है निकाह ना करके, उस पर तो फर्ज है। क्या है? उसके ऊपर फर्ज है। आज ऐसे भी केसेस हमारे मुआशरे में दुनिया के भरे पड़े। शादी की उम्र हो गई, बीवी को पालने की ताकत है, हर चीज है, उसके बावजूद भी शादी के नाम से दूर भागते और फिर अपने नफ्स की तकमील के लिए क्या करते? जिना का रास्ता इख्तियार करते। ऐसे लोगों के लिए तो निकाह कर लेना फर्ज बताए सरकार। लिहाजा मेरे आका की सुन्नत को अपनाओ। मेरे आका फरमाते हैं निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। आज आप देखो, जिना का काम आदमी 100 रुपए में भी करके आ जा रहा। कितने में? 100 रुपए में भी आदमी फारिग होके जिना के काम से आ जा रहा। 100 रुपए में शादी नहीं हो रही हो, 100 रुपए में शादी नहीं हो रही। हमने अपने ही हाथों से इस सुन्नत के काम को इस कदर दुश्वार कुन बना दिया है कि जिसकी कोई हदीस नहीं है। शादी के नाम पर लोगों को रोना आ रहा, हाथा पांव में थरथरी छूट रही, कितों को तो हार्ट आ जा रहा। क्यों भाई? सुन्नत की अदायगी के नाम पर हाथा पांव क्यों कांप रहे, हार्ट क्यों आ रहा, चक्कर क्यों आ रहा, बीपी क्यों गिर जा रहा? क्या करना साहब? 500 आदमी को खिलाना है, 800 आदमी को खिलाना है। हरीस होना गते, चिकना होना गते, मिठे होना गते, बिरयानियां होना गते। फिर थोड़े गैर मुस्लिमा भी है गते, उनके वास्ते वेज भी बनाओ बोल रहे हैं। दूल्हे के टेबल को साबित बकरा रखना गते। समझ रहे हैं आप? दूल्हे के दोस्तों की मंदी की ख्वाहिश है गते। आइसक्रीम, ठंडे के बाटला। हजरात मुहतरम, ये मुतालबात कर करके हम इस सुन्नत काम को दुश्वार बना दे रहे हैं। उसको हार्ट, बीपी, शुगर वाले बातें बोल करके उसकी तबीयत को खराब मत करो, उसको हिम्मत दो। भाई, आप जो इस्तिताअत रखते हैं उस हिसाब से काम कीजिए। खिलाते तो खिलाइए, नहीं खिलाते मत खिलाइए। चाय भी नहीं पिलाते तो एक गिलास पानी पिला दीजिए, वही काफी हमारे लिए। कितनी हिम्मत आ जाती। ये मत भूलो, कल को तुम्हारे पेट में भी औरत बच्चियां पैदा हो सकते। अगर आज किसी को नोच के खाने का तुम काम कर रहे हैं तो तुम्हारे सर पे भी वैसी लोग मुसल्लत हो जाते। तुम्हारे को नोच के खाने वाले, तुमको भी जो है ना हार्ट और बीमारियों में मुब्तला करने वाले लोग तुम पे मुसल्लत हो जाते। सरकार फरमा दिए, कमा तदीनु तुदान,
جو बोओगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लिहाजा बच्ची वालों को मुतालबात करके मजबूर मत करो, उनकी गुर्बत का, उनकी कसमा पुरसी का, है ना, उनकी तंग दस्ती का लिहाज रखो, लिहाज करो और उनको परेशान करने के बजाय उनकी मदद करो, उनकी हिम्मत अफजाई करो। कहो अरे भाई आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप पर हम कोई बोझ नहीं डाल रहे हैं, आप हमारी बच्ची, अपना जिगर का टुकड़ा, अपना दिल का टुकड़ा, अपने आंखों की ठंडक आप हमारे हवाले कर रहे हैं, अपने घर की जीनत आप हमारे घर को अता कर रहे हैं और हमारे घर की जीनत को बढ़ा रहे हैं। ये इससे बढ़कर हमके लिए, हमारे लिए और कुछ नहीं है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए, यही काफी है। ऐसे दो चार जुमले बोलो, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा, बीमार होगा तो तंदुरुस्त हो जाएगा। तुम अच्छे खासे को बीमार करने पे तुले हो। ऐसे मुतालबात ना करो, बेजा रसूमात ना करो। कोई लाजिम नहीं है 600 आदमी 500 आदमी का खाना हुआ तो शादी होती, कोई लाजिम नहीं है। सिर्फ 2 गवाह 1 वकील, 2 गवाह 1 वकील, दूल्हा दुल्हन, निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब, हो गई शादी खत्म, शादी हो गई वहां पर खत्म। ना हजारों का मजमा होना, ना वीडियो होना, ना फोटो शूटिंगा होना। 1 गवाह 2 गवाह 1 वकील, निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब, दूल्हा दुल्हन, बस इतने लोग भी रह गए तो निकाह की रस्म पूरी हो जाती। ईजाबो कबूल है असल चीज, मेहर है असल चीज, ये औरत का हक है। काजी साहब पूछते हैं क्या मियां मेहर कितना, मेहर सुनते दूल्हे की आंखें फट जाते, अब्बा को देखता, चिच्चा को देखता, ताया को देखता, क्या बोलना उसको मालूम ही नहीं। फिर पीछे से एक आवाज आती 1100 रुपए लिख लो काजी साहब, 5001 रुपया लिख लो। दूल्हा हां ना क्या भी नहीं, उधर दुल्हन को भी नहीं मालूम, दुल्हन को भी नहीं मालूम उसका मेहर कितना तय हो रहा। सो बाहर बाहर ही सब कर ले रहे अपने आप से डिसाइड। ऐसा नहीं है तरीका। दूल्हा मेहर मुकर्रर करेगा, वो दुल्हन को सुनाया जाएगा और दुल्हन उस पर रजामंद होगी। दुल्हन कहेगी हां मुझे ये मेहर मंजूर है, तब फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर बच्ची बोली नहीं इसमें मुझे इजाफा चाहिए, मेरा मेहर इतना नहीं इतना चाहिए, तो उतनी बात करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? लेकिन यहां तो ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, सो बाहर का बाहर डिसाइड हो जा रहा। फिर बाद में अंदर साइना लेने गए वक्त में बच्ची को सुना रहे ये देखो अम्मा 1100 रुपए तुम्हारा मेहर बने दो। वो भी हुदार, वो भी हुदार, सही बोल रहे। कितने लोग तो तदफीन होने के बाद खबर पे खड़े होके माफ कर लो जी तुम्हारा मेहर बाकी रह गया, हमें क़यामत में नक्को पकड़ो, माफ कर दो। देखो मरने के बाद, खबर में जाने के बाद ये तरीके चल रहे हमारे अपने बनाए हुए। हक मेहर है, उसका मेहर हक है। समझ रहे हो आप दोस्तों और बुजुर्गों? तो ये सब चीजें जो असल है उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। समझ रहे हैं आप? सांचक, मंजे, ढोलक के गीत, लाइटा, फोकसा, डीजे, बाजे, पटाखे, बग्गियां, हारा, घोड़े, ऊंटा, हत्तियां, ये चल रहा मामला। जिसका दूर दूर तक निकाह में तसव्वुर नहीं है उन चीजों को लाजिम करते जा रहे हैं, और जो चीजें निकाह के लिए जरूरी है उनका तसव्वुर खत्म करते जा रहे हैं। ये इतने बड़े नालायक लोग हो जा रहे हैं हमारे मुआशरे में। अगर आज इनकी इस्लाह नहीं की जाएगी तो यकीनन आने वाला वक्त और बुरा हो जाएगा। हजरात, डॉक्टर कड़वे गोलियां देता है दुश्मनी में नहीं, मोहब्बत में। समझ रहे हैं आप? वो कड़वे गोलियां निकले तो सहज संभलती, कड़वे गोलियां निकले तो सहज संभलती।
एक गोली डॉक्टर की खाए, थू थू थू, क्या कड़वी गोली दिया रे। इससे बड़ी गोली मेडिकल हॉल पे मिलती मेरे को मालूम है, उसका नाम है पोलो, बीच में सुराख भी रहता उसको। अब वो पोलो गोली उन्हें चूसते 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 पूरा तारक भी छिल लिया, जबान के कोने भी छिल लिया, तो उसका बुखार कम हो जाता, उसकी तबीयत संभल जाती। गोली गोली बराबर नहीं होती, बेशक गोली गोली बराबर नहीं होती। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये डॉक्टर जो कड़वी दवाई देता है, इंजेक्शन जिस्म में घुसरता है, उसका मकसद दुश्मनी नहीं है, उसका मकसद इलाज है, आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती है। लिहाजा इसको भी आप वही समझो। दोस्तों और बुजुर्गों, कि जब दिल का ऑपरेशन करना हो तो नश्तर लगाना पड़ता है। दिल का ऑपरेशन करना हो तो नश्तर लगाना पड़ता है। इसी तरह ये अल्फाज का नश्तर लगाना पड़ता है ताकि कौम सुधर जाए, कौम में सुधार आ जाए, नौजवानों में सुधार आ जाए। 1100 रुपए मेहर की रकम लिखाने वालों, अगर बुला के पड़ों से बाजू बिठा के पूछे मेहर के पैसे तो 1100 रुपए लिखे, जोड़े की रकम कितने लिए? 1.5 लाख रुपए दिए। हम ना तो 2 बोल रहे थे, देख रहे हैं आप, शर्मिश नहीं है इन लोगों को, इंटरनेशनल फकीरा है ये। 2 लाख दे रहे, 2 लाख दियो बोलेगा, 2 लाख नक को तेरे को। गाड़ी भी बोले नहीं, ये देखो 220 का थे वो भी। अब ऐसी ख्वाहिशा बढ़ रहे, 350 भी होना कहते। तो ये मुआशरे में इस तरह से चलन चला है हमारे, कि इसको हमने लाजिम समझ लिया है। समझ रहे हैं आप, लाजिम समझ लिया है। अरे ऐसे ऐसे मजबूर बापों को भी देखा गया है, एक बच्ची की डोली उठाने के वास्ते उन डोले पे जाने को तैयार हो गया, डोली उठाने के वास्ते डोले पे चढ़ने को तैयार हो गया। एक किडनी बेच डाला, 1.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में किडनी का सौदा कर लिया, ये वादा कर लिया, बॉन्ड लिख दिया, शादी के बाद ये किडनी तुम्हारी, पैसे दे डालो, बच्ची को उठाना है। कौन मजबूर कर रहे हैं ऐसे? हमें जैसे, तुम्हारे जैसे लोग। बदलो इस मुआशरे को मुसलमानों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहरहाल बात लंबी हो गई, मगर जरूरी था इस्लाह मुआशरा के तहत, तो मैंने आपके गोशे गुजार कर दिया है, समातों की दहलीज तक पहुंचा दिया है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें अपने महबूबों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक रफीक अता करे। हमें नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर